So today we will start with writing a RESTful APIs. Writing what? RESTful APIs. Okay. So we have tried APIs for all the DML operations. That is for insert, update, delete. Okay, and we also write for the select also. What we also write for? Select. So whatever you want to do, a single select, multiple select, select star, select one column, select two columns. Okay, so we can write APIs for all these. So generally how the flow works is the client will send a request. Okay, if we have a employee registration page in the front end. Okay, this is the employee registration. Let's say we are just asking for three attributes of our employee: his employee number, employee name, and his salary. Make sense? Now, generally the employee number is auto incremented, incremented, right? So we don't ask the front end to enter employee number. The college doesn't ask you to enter roll number. Roll number they will allot you. Yes or no? They will ask you to enter your name and salary. So this will be auto increment. So this we will not take from the user. Make sense to you? And this two things we will take from the user: his name and his salary. Correct? Now this data can come to our application, to the controller, which is the entry point of our application. The request comes to the controller first, right? So this can come as two types. This can come as your path variable, or this can come as query params. Can come as what? Your parameters. Okay, request param they call it. It can come as what? Request params, or they can also come as request body. Yeah, one more. Request body. So these are the three ways in which the front end can send us the data: as path variable, as request param, and as what? Request. Path variable means this data will come in the URL itself. Localhost colon 8080 slash whatever is the application name you are making for making for Swiggy. Okay, and whichever URL we are calling, whichever what is the option we are doing? Insert, right? We are writing add employee, right? So this will be my resource at the controller. This will be my controller resource here. What will I give? Swiggy, and what will I give over here? Add employee. Make sense? Then after this, by giving slash, by giving what? Slash, I can pass these ename and what? Salary. Will I accept the e number? No, e number I will auto increment. Make sense? So this is what your path variable by slash and in the URL itself. Okay. Request params. Once the resource gets finished, where is the resource finished? Over here, right? Then give a question mark. Then give a, and then give key value pairs. Give what? Key value pairs. Key name equals to Alice and salary equals to 8. This is what in the request param. After the question mark, you can read this. And third is request body. Just give this. Sorry. Localhost 8080 slash Swiggy slash add employee. Just give this much, and then Postman will ask you
to go in the request body. You go in where in the you can pass those details in the request body in a JSON format. So like this, ename double quotes, then colon, then what? Colon double quotes, the name, comma, and then double quotes, salary, colon, double quotes, 800, no more stuff like this. So you can pass this as a request body. Okay, see over here. Okay, so we are coming a post to a request body and you can pass it over like this. ये लास्ट वाला है क्या लास्ट? हाँ लास्ट वाला थर्ड तरीका है रिक्वेस्ट बॉडी से भेजने का डेटा। समझ में आ रहा है? फ्रंट एंड का डेटा आपने को इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो वो डेटा किसके पास आएगा? आते ही कंट्रोलर के पास, ठीक है। ये तो आपको कहानी मालूम होना चाहिए फ्लो का पूरा। तो डेटा फर्स्ट आएगा किसके पास? कंट्रोलर। अपने को सेव करना है इसको डेटाबेस में, ये डेटाबेस, ठीक है। और फ्रंट एंड से आया है, तो ये हमारा फ्रंट एंड, हमारी सीमा समाप्त होती है फ्रंट एंड से। यहाँ से आ रहा है फ्रंट एंड से, वो किसको कांटेक्ट करेगा? कंट्रोलर। मेकिंग सेंस? कंट्रोलर, कंट्रोलर उसको राउट करेगा सर्विस के पास। किसके पास? किसके पास? सर्विस। और सर्विस उसको राउट करेगी रेपोजिटरी के पास। किसके पास? रेपोजिटरी। और रेपोजिटरी उसको MySQL जो अपना डेटाबेस रहेगा उसके अंदर स्टोर होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो कंट्रोलर किससे इंटरेक्ट करेगा? तो इन ये क्लास के ऊपर क्या लिखा रहेगा? @ कंट्रोलर। इस क्लास में क्या लिखा रहेगा? इस क्लास के ऊपर। और ये वो 3 स्टीरियोटाइप एनोटेशंस है जिनके बीन्स अपने को ISO कंटेनर से मिल जाते हैं ऑटो वायरिंग से। तो सर्विस को जब इससे कन्वर्ट करना करेगा, समझो ये अपना एम्प्लॉय करे ना अपन सबका नाम देते हैं क्लास एम्प्लॉय। ये सब क्लासेस है क्या ये? तो क्या ये क्लास एम्प्लॉय क्या नाम से? हाँ, कंट्रोलर, राइट। तो इसके वो क्या नोट किया है? तो ये क्या है? क्लास एम्प्लॉय सर्विस। ये कौन सी क्लास है फिर? ये इंटरफेस रहता है। क्या रहता है ये? इंटरफेस। रिपोजिटरी इंटरफेस। इंटरफेस क्या नाम से? एम्प्लॉय रिपोजिटरी। और ये अपना MySQL डेटाबेस है। समझ में आया? अब इसका ऑब्जेक्ट हमको यहाँ लगेगा। तो समझो इसके अंदर हमने एक रिसोर्स बनाया, क्या नाम से? पब्लिक वॉइड। पब्लिक वॉइड जब उसको सेव करेंगे तो रिस्पॉन्स देगा। चलो ठीक है, अपन एक स्ट्रिंग भेज देंगे। ये रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। क्या देंगे अपन? एक स्ट्रिंग दे देंगे फिलहाल। तो फंक्शन का नाम क्या होगा? ऐड एम्प्लॉय। क्या होगा? ऐड एम्प्लॉय, राइट। तो अब जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं क्वेरी पैरम से, किससे करते हैं? है ना, ये किससे करेंगे? रिक्वेस्ट पैरम से। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट पैरम से करेंगे। तो जितने आपने को इनपुट चाहिए, कितने इनपुट चाहिए? तो वो अपन यहाँ पर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? @request पैरम। पहला किस टाइप का है? स्ट्रिंग। क्या नाम? ename, कॉमा @request पैरम। क्या नाम का है?
इंट सैल, क्या डबल सैल जो इंट चाहिए आपको फिलहाल, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। ये फंक्शन किस पे कॉल हो रहा है, स्लैश ऐड एम्प्लॉय। तो क्या बनाएंगे इसको हम, रिक्वेस्ट मैपिंग, क्या करेंगे इसको, एट द रेट क्या, रिक्वेस्ट मैपिंग, और क्या वैल्यू देंगे, हाँ वैल्यू इक्वल्स टू क्या, स्लैश क्या, ऐड एम्प्लॉय, यस नो मे बी, ओके। देखो JPA जो है ना, अपन जो यूज करने वाले डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये जो इतना होगा, ये JPA है। कौन है ये, JDBC था ना, डेटाबेस से कम्युनिकेशन लेना और देना। ये अभी कौन करेगा, JPA। इसके थ्रू करेंगे अपन, इसके थ्रू जावा परसिस्टेंस API, क्या, JPA के थ्रू, ठीक है। तो JPA में क्या होता है, सिंपल रूल है, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू टेबल। कन्वर्ट क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट या डायरेक्टली क्लास को दे दीजिए, क्लास टू डेटाबेस टेबल। डायरेक्ट कोई क्लास लेगा, उसको क्या कर देगा, टेबल में कन्वर्ट। अपने को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, मैन्युअली डोंट डू एनीथिंग, just you have to create the database, just create the database and keep, just do what, create the database and be ready। जिसको हम क्वेरी करेंगे वो डेटाबेस यहाँ पर बना के रखना, बाकी उसमें टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट करना, वो सब अपने को आगे देख करने की जरूरत नहीं, हम सब क्या करेंगे, रेस्ट कंट्रोलर से करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी एक क्लास है, तो मैंने क्या क्या कंट्रोलर का, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर आप यूज करते हैं, याद है कि नहीं, कल जो किया था अपन ने यूज, ओके। तो अभी मुझे, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, क्लास को डेटाबेस टेबल, तो यहाँ पर जो टेबल बनेगी किस नाम से बनेगी, तो उस नाम के क्लास बनाने का, उस नाम के क्या बनाने का, क्लास बनाने का, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज को स्टोर करने का, और वो ऑब्जेक्ट पास करने का सर्विस, क्या करने का, सारा खेल क्या है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है सारा, ठीक है। तो क्लास टू टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू डेटा, क्लास क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी, और उसका डेटा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दूंगा, ये काम JPA का सिंपल रूल है, JPA का, ऑब्जेक्ट बनाओ उसको इंसर्ट करो। तो अभी अपने को एक टेबल क्रिएट करनी है, किस नाम से, तो उस नाम से पहले क्या बनाओ, क्लास बनाओ, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं अपनी वो जो क्लास जो है ना, मॉडल क्लास बोलते हैं, एंटिटी क्लास ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, JPA उसको एंटिटी से जानता है, JPA के लिए क्या है वो, तो मॉडल क्लासेस यार, वो जो क्लासेस JPA में क्या है, एट द रेट क्या, एंटिटी क्लासेस। तो आपको पैकेज का नाम एंटिटी दो या मॉडल दो, जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तभी अपने को वो करना है, तो एक मॉडल क्लास बनाना है किस नाम से, हाँ वो भी एक आता है, तो सर्विस है, रिपोजिटरी है, ये है, और एक आता है चौथा किस टाइप का, हाँ चौथा क्लियर कौन है, डेटाबेस तो है ही ना, मॉडल, यस और नो। तो अपन को चाहिए एक और क्या, ऐड एंटिटी चाहिए, क्या चाहिए अपने को, ये सारा मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, अगर मेरे पास स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 पेज चाहिए, तो अभी एक और आएगा अपना पैकेज। ये सारे पैकेजेस है ना, ये सारे पैकेजेस है क्या नहीं, तो कंट्रोलर नाम से एक पैकेज बनेगा, इसमें सारे कंट्रोलर का काम रहेगा। फिर एक पैकेज बनेगा किस नाम से, सर्विस, एक पैकेज बनेगा किस नाम से,
रिपोजिटरी और एक पैकेज बनेगा किस नाम से? मॉडल का एंटिटी क्या चाहिए आप लोगों को? बोलो एंटिटी, ठीक है। तो उसको हम किससे नोट करेंगे और एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम क्या रहेगा? ये पोजो क्लास रहेगी। इसमें क्या करेगा? इंटीजर, रोल नंबर, स्ट्रिंग, एस नेम और ओके एम्प्लॉय करे ना, तो ई नंबर, ई नेम और इंटीजर सैलरी। फिर इसके सेटर गेटर और इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, इसका टोस्ट। ये सब इस क्लास में रहेगा, कोई शक? तो ये एक अलग से पैकेज बन गया। चौथा पैकेज क्या नाम से? एंटिटी। और पांचवा पैकेज किस नाम से? पांचवा पैकेज किस नाम से? नॉनसेंस मेन का रहेगा। हाँ अपना मेन होगा। कोई शक? कोई शक नहीं। तो रिक्वेस्ट पहले आएगी यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है ना एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एम्प्लॉय E1 इज न्यू एम्प्लॉय। ओके, क्या करने का अभी? अब इस E1 के अंदर वैल्यूज डालेंगे अपन यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से, राइट। तो उसके सेटर गेट तो है ना, क्या करेंगे? E1 डॉट सेट क्या? ई नेम। किसको पास, उसको क्या पास करने का? ई नेम पास करने का। और E1 डॉट सेट सेल, उसको ये सेल पास कर देंगे। ये जो डेटा आ रहा है ना यहाँ से मेरे पास रिक्वेस्ट पैराम में से, ये सेट कर रहा हूँ। अब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट बना के पास कर दो अगले वाले प्लेयर के पास। बस गोलकीपर पास करेगा डिफेंडर को, डिफेंडर पास करेगा मिडफील्डर को, मिडफील्डर पास करेगा स्ट्राइकर को और वो गोल मारेगा। तो गोलकीपर ने अपना बना दिया। अब वो किसको पास कर देगा? सर्विस को। तो यहाँ पर सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सर्विस का। तो देखो अपने को कंट्रोलर में क्या लगने वाला है? सर्विस का ऑब्जेक्ट। रिपोजिटरी में सर्विस में क्या लगने वाला है? रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑटो ऐड कर दे, क्या कर देने का? क्या कर देने का? तो यहाँ पर क्या लगने वाला है मुझे? एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट EMP सर्विस। यस और नो? तो उसको क्या कर दूंगा मैं? ऑटो वायर्ड। डायरेक्टली मुझे मालूम है कि इसका 5 से कंटेनर में डेटा रखा हुआ है। क्या कर दूंगा इसको मैं? ऐड ऑटो वायर्ड। सेम थिंग कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? व्हाट विल आई रिक्वायर इन द सर्विस? रिपोजिटरी का। तो क्या करूंगा मैं? एम्प्लॉय रिपोजिटरी, उसका क्या? एम्प्लॉय रिपो ऑटो वायर्ड। अरे कोई शक? ओके, अब मैं इस एम्प्लॉय सर्विस से फंक्शन कॉल करूंगा। क्या करूंगा अभी? इस एम्प्लॉय फंक्शन से मैं एक सर्विस कॉल करूंगा। क्या करूंगा? ठीक है। अभी जो मेरा E1 बना है, अब इस जो क्या ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एम्प्लॉय सर्विस, राइट। उससे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा। क्या नाम अपना क्या कर रहा है? अपना काम है ऐड एम्प्लॉय, राइट। वो यू कैन यूज द सेम नेम। और इस ऐड एम्प्लॉय को क्या पास कर दूंगा मैं? ये E1 पास कर। मेरा काम खत्म। एम्प्लॉय सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या कॉल किया फंक्शन, और क्या पास कर दिया उसको? अपना E1 ना, E2 नहीं है, E1 ही है ना। क्या पास कर दिया उसको मैंने? E1। तो अभी एम्प्लॉय सर्विस में एक मेथड होना चाहिए, क्या नाम से? ऐड एम्प्लॉय। क्या नाम से? जो किस टाइप का आर्गुमेंट लेगा? एम्प्लॉय टाइप का आर्गुमेंट लेगा ना, और उसको देते EMP। यस। और वो उसको किसको भेज देगा? कुछ करना नहीं, अपने को सिंपल काम कर रहा है। ये आपको लग गया थोड़ा बिजनेस लॉजिक कि वही एम्प्लॉयज को सेव करो जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ वो लॉजिक लगाएंगे। इफ योर
emp डॉट, क्योंकि वो इवन emp में आ गया ना, इस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, तब तुम करो ब्ला ब्ला ब्ला, तो अपने को करना नहीं है, अपने को सिर्फ इंसर्ट करना है। तो अब ये किसको पास करेगा, रिपोजिटरी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है emp रेपो, तो सेम फंक्शन रख लो ऐड emp, और जो उसने आया है वो उसको पास कर दिया उसने, उसको इवन आया था, इवन किसने लिया उसने emp में, तो वो emp पास करेगा ना, उसके बाद तो वो a1 emp बन गया ना, ठीक है। और फिर हम जाएंगे इधर, यहाँ पर भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा किस नाम से, एड एम्प्लॉय, राइट, इसे, ये तो सर्विस में है ना, थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया इधर है ना, ये सुनो, हम जाएंगे कंट्रोलर में, जाएंगे रिपोजिटरी में, क्या फंक्शन बनाएंगे अपन, ऐड एम्प्लॉय, क्या करेंगे ऐड एम्प्लॉय, और वो ऑब्जेक्ट किसमें आएगा, एम्प्लॉय क्लास के इसमें ना, है ना, emp, जो भी उसका नाम दिया है इसने e1 दिया है, और वो क्या कर देगा फिर रिपोजिटरी में फंक्शन कॉल करेगा सेव नाम से, क्या नाम से फंक्शन कॉल करेगा, सेव, और e1 को डाल देगा उसके रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो रिपोजिटरी में दुनिया भर के फंक्शन है, ये जो एपीआई है ना, CRUD एपीआई जो है अपने इंसर्ट अपडेट, उसके वास्ट नंबर ऑफ फंक्शन रिपोजिटरी के अंदर है। एक फंक्शन इंसर्ट के लिए क्या बनाया, आपको सर्च करना है तो फाइंड बाय आईडी, बहुत सारे उसके अंदर फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। तो जितना तुम्हारा रिपोजिटरी के फंक्शन पे कमांड है, उतना आप एपीआई को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। समझ में आया फ्लो पूरा, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस कोडिंग ऑफ इट। सो फर्स्ट आई विल प्रिपेयर द आर्किटेक्चर ऑफ आवर फ्लो, लेट्स गो टू दिस ओनली। ओके, टेस्ट कंट्रोलर आ गया, तो अभी मैं अपने सारा पहले तो बनाता हूँ स्केलेटन, क्या होगा प्रोग्राम का, सारे पैकेजेस के नाम, ठीक है। तो यू वांट टू मेक अ फ्रेश प्रोजेक्ट, अवार्ड फ्रेश प्रोजेक्ट, आगे रिकॉर्ड हो गया, न्यू में गए, जावा प्रोजेक्ट पे गए, और बोले माय फर्स्ट थर्ड एपीआई फिनिश। अरे हाँ, we'll use string initializer, no, why will we use this? Yes, I was just checking how alert you all are sitting in class, ठीक है। we'll delete this, not needed over here, ऐसा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। good one, good question, ठीक है। so we go to string initializer, बेशक we go here, okay, then java ले लो 2.3 ले लो, com dot enum tech, और अपन बना रहे हैं नेस वाडिया कॉलेज के लिए, तो NWCC ऐप, ठीक है, बन गया। और ये NWCC ऐप एप्लीकेशन, ये बनेगी अपनी मेन का नाम, क्या बनेगा, जो अपनी मेन क्लास होंगी जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा, इसका नाम क्या बनेगा, नेम, जो यहाँ पर नेम दिखता ना, उसके आगे क्या लगाते हैं वो एप्लीकेशन विद कैपिटल ए, तो आपका क्या आएगा NWCC ऐप एप्लीकेशन, ओके। तो इसके लिए NWCC ठीक है, कोई शक, बाकी डेमो प्रोजेक्ट टाइम पास है। ओके, अब यहाँ जाने का अपना क्या करने का, डिपेंडेंसीज, तो अभी अपने को लगेंगे सबसे पहले वेब डिपेंडेंसीज, वेब ले लिए, फिर माई एसक्यूएल का क्या लगेंगे, माई एसक्यूएल, तो उसके ले लिए, तो फिर अपने को लगेंगे जेपीए के, किसके लगेंगे, जेपीए के, तो उसके ले लिए, फिलहाल इतने काफ़ी है, ओके। और क्या करने का, ओके, अगर आपको बाद में भी कोई आपको डिपेंडेंसी लग रही है, तो आप यहाँ पर आके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी मैंने ये नहीं लिया, मैंने प्रोजेक्ट जनरेट कर दिया, मेरा जनरेट हो गया, फिर मुझे लगा कि यार आई शुड आल्सो हैव एडेड जेपीए, तो आई जस्ट कम ओवर हियर, डोंट डू एनीथिंग ओवर हियर, जस्ट कम ओवर हियर, जस्ट सर्च फॉर व्हाट, सर्च फॉर जेपीए और व्हाटएवर, ठीक है। जेपीए आ गया, गो टू एक्सप्लोर, एंड हियर जाके यू विल सी उसने सब ऐड कर दिया है, फॉर्म दिख रहा है क्या, ये फॉर्म एक्सेल, तो उसने यहाँ पर सबको जेपीए की डिपेंडेंसी ऐड कर दिया है, ठीक है, डिपेंडेंसीज, तो ये डिपेंडेंसी एक है किसके लिए, जेपीए के लिए, तो सिर्फ इतना कॉपी करने का, क्या करने का, इतना कॉपी करने का और पेस्ट कर देगा फॉर्म में और रिफ्रेश कर देगा, समझ में आ रहा है।
तो वेब की तो थी और MySQL की भी थी, इसकी नहीं थी। JPA की तो डिपेंडेंसी लिया यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी अपने पास सब कुछ है तो जरूरत नहीं। ओके, चला गया। ओके, तो फॉर्म डॉट इनम टैग क्या था, NWCC प्रो का प्रोजेक्ट। कोई पिछला कोई प्रोजेक्ट रहेगा NWCC तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा नेसेसरी, अपने वजह से कोई सिली मिस्टेक वाला काम नहीं हो, ठीक है। और इनम टैग आ गया, टाइम पास है बस। डिपेंडेंसी ऐड करना है कौन सी वेब की और JPA की और MySQL, कोई शक, जनरेट कर दिया, हो गया। शो इन फोल्डर किया, कॉपी किया, मेरे जहाँ पर मेरा वर्क बेंच है और डाल दिया इसका। एक्स्ट्रा क्लियर कर दिया, कोई शक। फिर फाइल में गए, ओपन प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी में गए, स्प्रिंग बूट क्या नाम से NWCC प्रोजेक्ट को लिया और सिलेक्ट फोल्डर किया, फिनिश कर दिया। यहाँ पर आया वो NLMN इधर आया, ठीक है। राइट क्लिक किया इसके, पहले जाके इसका फॉर्म में देखा कि इसका जावा क्या है, ठीक है। मेरे पास जावा 1.8 है, मेरे पास जावा कौन सा है 17 दिखा रहा है ये। मैं क्या करूँगा, पहले इसको चेंज 1 पॉइंट, ओके कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब मत करो इसको, डाउनलोडिंग कर रहा है इंटरनेट से, तो ना पहले उसको बोल दो। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर रहा है जावा डॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया, चलो सब कुछ हो गया इसका काम। क्या करो, उसको अपना जो JDK है वो ले लो। क्या है JDK आपका 1.8, ओके। राइट क्लिक करो इसमें और मैवन पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, मैवन पे जाओ और अपडेट प्रोजेक्ट कर दो। कौन सा वाला है अपना NWCC सिलेक्टेड है, ओके। ये अपडेटिंग मैवन प्रोजेक्ट का हो गया। अभी जाके आप ये कंपाइलर और वो सेट कर दो। राइट क्लिक किया और बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में गए, क्या लिया इसने जावा 16, ये सिलेक्ट किया, इसको एडिट कर दिया, क्या नाम से ऑल्टरनेट GR यूज़ किया मैंने, कौन सा है मेरा 1 पॉइंट, ओके। मुझे तो मेरा डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, क्या डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस, ये जरा के लिए निकाल दो, आपका जो डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। फिनिश कर दिया और अपने को कंपाइलर भी देखना है कि कंपाइलर चेंज अप्लाई करना है ना, बिल्ड पाथ के चेंजेस अपने जो करे उन्हें अप्लाई नहीं करे ना, नहीं चलेगा कंपाइलर पे। कंपाइलर में गए और क्या करा, इसको ये निकाल दिया, ये रख के लगा दिया अपन ने, क्या हो गया, क्या हो गया ये, राइट क्लिक पे बिल्ड पाथ किया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में गए, ये तो ठीक है। कंपाइल ये क्या है, इसका अप्लाई करने पड़ेगा, क्या क्या होता है, सोर्स कंपैटिबल मस्ट बी इक्वल और लेस देन द कंप्लायंस लेवल 1.8 ही तो है, ये जो है
ओके, ये ऐसा होगा, ठीक है, तो निकाल देना। और रीबिल्डिंग कर रहा है एप्लीकेशन को, रीबिल्ड होगा, ठीक है। तो मेरे इसमें जाता अभी रीबिल्डिंग पूरा ऑन देना पहले, ठीक है। आपको जब भी डिपेंडेंसी लगेंगी तो उनसे डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए वो टाइम। तो मेरे SRC में गया और ये मेरा मेन फोल्डर आ गया और यहाँ पर ही मैं अपने फोल्डर बनाते रहूँगा। न्यू पैकेज, पहला क्या है, क्या नाम दिया है, फॉर्म डॉट इनमटेक डॉट NWCC Pro डॉट कंट्रोलर, ओके। ये मैं कहाँ बना रहा हूँ, सोर्स में क्या बना रहा हूँ मैं, SRC में। न्यू पे गया, पैकेज क्या नाम से, कंट्रोलर के बाद सर्विस है ना, सर्विस, सर्विस के बाद रिपोजिटरी, न्यू पैकेज रिपोजिटरी, फिर रिपोजिटरी के बाद एंटिटी है ना, किस नाम से, अरे पोजोस कहाँ रहेंगे, एंटिटी, कोई शक यहाँ तक, ओके। तो अपना ऐप तो रेडी है, NWC Pro एप्लीकेशन, ठीक है, ये सेट है। अब बनाते हैं कंट्रोलर, क्या बनाते हैं अपन अभी, तो राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, एक क्लास बनाए, ठीक है, क्या नाम से, EMP कंट्रोलर, ओके। इसको क्या नोट किया, @REST करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट दूंगा तो मुझे प्रॉम्प्ट कर देगा रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, बना दिया। इसके बाद क्या करें अपन ने, जो अपना रिसोर्स होगा, क्या होगा, जिसको हिट करेगा ना, जिसको हिट करेगा उसको क्या अपन ने नोट किए हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करें, स्विगी, क्या करें अपन ने, कुछ नाम देना है एप्लीकेशन को, कुछ नाम देना है एप्लीकेशन को, @रिक्वेस्ट मैपिंग, क्या वैल्यू देना है, ये अपने दे दिए /NWC, क्या दे दिए, ये लोकल होस्ट पोर्ट के बाद में /NWC में एम्प्लॉय ऐड करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन रिटर्न करेंगे जो स्ट्रिंग देगा, क्या देगा अपने को, स्ट्रिंग देगा, तो पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या करेंगे, रजिस्टर या ऐड एम्प्लॉय, चुपचाप ऐड EMP, ओके। अभी ये लेगा रिक्वेस्ट पैरेंट लेगा ना, ये क्या लेगा, ये तो कोई रिटर्न मांग रहा है ना, रिटर्न हाई कर देते फिलहाल, ठीक है, फिलहाल इसका एरर चुप करा देते, ठीक है। अब अपने को क्या क्या चाहिए, पहले है ना पोजो बना दिया करो, क्या कर दिया करो पहले, ये पोजो क्लास, अपने को आइडिया है कि अपने को क्या क्या पास करना है क्वेरी पैरेंट, है ना। तो क्या क्या चाहिए अपने को इधर, ये क्या है, देखो जितने भी @entity नाम के है ना एनोटेशंस, तो आपको चाहिए, तो उस क्लास के नाम से टेबल बन जाएगी, उस क्लास के नाम से बाय डिफॉल्ट क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। मैं अभी कोड रन करूँ, अभी कोड रन करूँ टेबल बन जाएगी, तो मुझे डेटाबेस, हाँ पहले तो बनाओ, डेटाबेस तो बनाओ पहले डेटाबेस तो बनाओ, रैम में गए, ठीक है, रैम चालू कर दिया अपन ने, और अभी अपना लोकल होस्ट php/php और एडमिन में गए, और अभी अपने नाम से बनाएंगे डेटाबेस, क्या नाम से, अभी बोलो क्या नाम देना है, कल क्या था अपना नाम, ZS, हाँ दोनों का नाम बना याद रहना चाहिए तुम लोग को, बेस्ट मेक इट batch3, क्या नाम से, डेटाबेस का नाम क्या है, बैच के नाम से, ठीक है। अब उसमें टेबल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत, ठीक है। अब उस डेटाबेस के सारे जो है ना URL वो सब कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में कहाँ जाएंगे,
बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है 8080, तो पोर्ट नंबर भी चेंज करना है तो ठीक है। और वो डेटाबेस का यूआरएल, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, वो सब कुछ जाएंगे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर्ली है ना, एक फॉर्मेट रहता है, आई विल शो यू दैट। तो अपना जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है देखो ऐसा ये फॉर्मेट रहता है, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये अपने इसमें डाल देंगे। तो आ गए अपन अपने इसमें गए, रिसोर्सेज में गए, प्रॉपर्टीज में गए, या पेस्ट। अपना डेटाबेस का नाम क्या है, बस ये चेंज करने का उसका रूट है, खाली पासवर्ड है, बाकी सब सेम है, ड्राइवर सब ठीक। ओके, जब मैं यहाँ चेंजेस करूँ तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाए चेंजेस, तो ये है अपडेट, ठीक है। डीडीएल्स को मैं यहाँ कुछ करूँ, यहाँ से मैं कोई टेबल को ड्रॉप करूँ तो वहाँ ड्रॉप हो जाना चाहिए, तो ये अपडेट। इतना पोर्ट नंबर के लिए अपन ने 8080 नॉर्मली ज़्यादा करके यूज में रहता है, तो इसके लिए मैं कुछ फिक्स कर लेता था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है। अपना अपाचे टॉमकैट जो है ना, तो ये जो है ना वेब जो डिपेंडेंसी है उसमें अपना खुद का इनबिल्ट अपाचे टॉमकैट है। तो इफ यू वांट टू यूज योर अपाचे टॉमकैट तो इंक्लूड विद डिपेंडेंसी वेब, तो वेब में अपना खुद का एक अपाचे है, उसका पोर्ट नंबर यहाँ दे दिया। अब मैं अभी भी रन करूँगा ना प्रोग्राम को, ऐसे इसी हालत में रन करूँ प्रोग्राम को, अगर कोई एरर्स नहीं रहे तो डायरेक्टली क्या करेगा वो, जितने एंटिटी क्लासेस है ऐसा बना देगा टेबल उस नाम से। किधर है एंटिटी है, एक एम्प्टी टेबल बना देगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो आपको कॉलम डालना है आपको, तो क्या करेंगे पहले इंटीजर रोल नंबर, राइट, ये प्राइवेट है ना, ओके, प्राइवेट इंटीजर ई नंबर, फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम, राइट, एंड प्राइवेट डबल सेट, कोई शक। तो अभी ये कॉलम नाम, ये एट्रीब्यूट नाम से कॉलम नहीं बन जाएंगे, ठीक है। आपको टेस्ट करना है, फिलहाल कितना सेव करो और इसमें जाओ और रन करो इसको, कितना रन करके देखो। और योर रैम शुड बी ऑन, हाँ, क्योंकि वो अपने को आ जाके करेगा ना, रैम बंद तो क्या करेगा वो। तो अगर ये सक्सेस हो गया, रन एग्जीक्यूशन आपका स्टार्टअप हो गया आपका एप्लीकेशन, तो आप देखोगे कि आपके उस डेटाबेस में टेबल ऑलरेडी बन चुके होंगे। ओके, क्या बोल रहा है ये, कुछ एरर्स आए हैं इधर, डिस्प्ले debug action failed, entity manager factory auto invocation of init method failed, no identification of entity, employee no identity। ओके, इसमें प्राइमरी की नहीं दिया ना अपन ने क्या नहीं करे, प्राइमरी की नहीं दिया, तो उसको लिए एट आईडी करना पड़ता है, क्या अपने को, वो क्या बोल रहा है तुम्हारे इसमें प्राइमरी की का नहीं दिया, तो उसके लिए है एट आईडी, क्या नाम से है, क्या नाम से एनोटेशन है, आईडी, बस एट आईडी नाम से है, मतलब ये क्या क्या बन जाएगा, तुम्हारा प्राइमरी की बन जाएगा। तो अगर आपको इस बनाना है तो प्राइमरी की के वैल्यूज देने पड़ेंगे, तो रन करेंगे और एप्लीकेशन, तो अगर आपका स्टार्टअप हो गया, तो जितने भी कॉलम के नाम है वो क्या, जितने भी एट्रीब्यूट है टेबल के वो क्या बन जाएंगे, कॉलम्स, और जो क्लास का नाम है क्या बन जाएगी, हाँ, देखो चालू हो गया, स्टार्टअप हो गया। अभी आप जाओ इधर, कितने कितने टेबल्स थे, है ना, रिफ्रेश करो इसको, आई कि नहीं, जाहिर क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा, आई कि नहीं, क्या नाम था, बस दिख रहा है एडवांस है एम्प्लॉय, और क्या है वही है क्या नहीं, समझ रहे, तो ये जेपीए है, जेपीए क्या करता, क्लास टू टेबल एंड ऑब्जेक्ट टू डेटा मैपिंग, वो मैपिंग करता है, आप तो ऑब्जेक्ट बना के दो मेरे को, बाकी मेरे को क्या करना है मैं करता हूँ, आप मुझे सिर्फ क्लास बना के दो, बाकी टेबल का क्या करना है, मेरे पास रिपोजिटरी में बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसका रिपोजिटरी इतना स्ट्रॉन्ग है जेपीए का, समझ रहे हैं। तो ये हाइबरनेट टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेड हुआ है, समझ में आया।
तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो अब जब अपन क्या ले रहे हैं सर, अपने को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो अब जब अपन रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो क्या देंगे इसको, @request मैपिंग है ना, क्या वैल्यू देने का उसको, एंड NWC से बाद क्या 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 पास करने का, हाँ स्लैश ना, ऐड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, URL में कैपिटल लिख दिया था। ठीक है। और मेथड क्या था, हाँ इक्वल्स हो गया रिक्वेस्ट मेथड डॉट भेज रहे अपन पोस्ट, सैलरी भेज रहे मैडम, भेज रहे अपन। और अगर पोस्ट, ये जो बॉडी है ना, बॉडी ये पोस्ट पे भेज सकते हैं आप, ये आप भेज रहे ना पोस्ट पे, गेट आप करोगे तो ये बॉडी का ऑप्शन दिखा है, अभी बॉडी देखो दिख रहा ना ब्रदर, जब मैं गेट कर दूंगा तो बॉडी डिसेबल हो जाएगी। तो आप गेट क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो अपन भेज रहे ना, तो अपन तीनों से ट्राई करेंगे सर, अभी यही आप भेजो क्वेरी पैरम से, ये आप भेजो पाथ वेरिएबल से, ये आप भेजो रिक्वेस्ट बॉडी से। तो क्या करें, अपन मेथड क्या यूज कर रहे हैं, पोस्ट। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है जो अपने को लास्ट रिटर्न करेगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसके लिए भी अपन बनाते हैं रिस्पॉन्स क्लास, क्या बनाते हैं, तो उसके अंदर हम डालते हैं स्टेटस कि ट्रू है क्या फॉल्स है, स्टेटस कोड 200 404 500 है ना, HTTP स्टेटस कोड है ना, याद करा इंटरव्यू में काम आएंगे। फिलहाल तुमको मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, कोई शक यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने को जब हम ये करेंगे तो कितनी चीजें पास करेंगे, ओके अपना ये जो आईडी है, क्या ये अपन ने क्या दिया आईडी। अब आईडी का जो जनरेशन वैल्यू है कि ये कैसे होता है जनरेट, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इसका अपने को देना पड़ता है जनरेटेड वैल्यू। क्या करते हैं हम, देते हैं क्या देते हैं अपन इसका, जनरेटेड वैल्यू। ठीक है। तो वैल्यू कैसे हो रहा है, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है ये, तो ऑटो इंक्रीमेंट होता है ये, तो ऐसा अपने को लिखना पड़ता है। स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू क्या, स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू क्या, हाँ जनरेशन टाइप इज जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। तो इससे क्या होगा, आपको सिर्फ क्या देना है, ई नेम और सैलरी, वो अपने आप हर इंसर्शन पे वैल्यू बढ़ाते जाएगा खुद ही। तो अपने ये आपको कोई देना नहीं है, अपने को सिर्फ क्या पास करना है यूजर से, ओके आपको ये नाम रखना है कि दूसरा कॉलम नेम चेंज करना है, तो आप उसको अलॉट कर सकते हो @कॉलम, क्या कर सकते हैं @कॉलम। ठीक है। तो अगर आपको नाम चेंज करना है कि सर मेरे को चाहिए कॉलम का नाम चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये बाय वो ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं दिया तो क्या करेगा, हाँ एम्प्लॉय, और उसके बाद भी वो नलेबल भी रहता है वो, कि अगर आपको नॉट नल करना है क्या नहीं करना है, तो नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये नॉट नल है भी, क्या ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप, आपको उसको वैल्यू पास ही करना है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर रहता है, तो दोनों कर दो इक्वल्स टू। तो अभी जब आप रन करेंगे, और अभी उसमें ऑलरेडी दो दो तो कॉलम है ना, और दो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, और दो बन जाएंगे। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए ओवर राइटिंग, तो आप इसको डिलीट कर देंगे टेबल, ये दो तो है ना, ई नेम और ई नेम, अब रन करेंगे तो और दो कॉलम बन जाएंगे, क्या नाम से, एम्प्लॉय नेम और सैलरी नाम से। ठीक है, आपको देखना है अगर वो, ठीक है, तो इसको स्टॉप कर दो, फिर इसको वापस प्ले करो, तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पर कितने कॉलम बन जाएंगे, हाँ। तो आपको लगेगा फ्रीज हो गया रिक्वायरमेंट, अब जाके जरा डिलीट मार देना, चालू हो गया। अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो कितने आ गए, 5 आ गए। अब मैं जाता हूँ इधर एम्प्लॉय और बैच 3 में गया, देखो ये ऑटो इंक्रीमेंट के लिए सीक्वेंस बना दिया उसने। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, उनको ड्रॉप कर देता हूँ, वही चाहिए। ठीक है, अब जब रन करूँगा तो मेरे प्रॉपर शेप में आ जाएगी। ठीक है, स्टॉप करने का, रन स्टार्ट करने का, वापस
अरे समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा कैसे होता है? Other entity at annotation understood. What is at ID? हाँ, what is generated value? अभी आ गया। तो अभी जब अपन करेंगे इसको रिफ्रेश, टेबल आ गई। आई नहीं, ठीक है। कोई शक? और सब नल नो 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 हो, नल नहीं दे सकता। क्या तो समझ में आया तुम लोग को? अब जाते हैं कंट्रोल में, क्या जाते हैं? अब वो क्या पास कर रहा है? पहले किससे ले रहे अपन? पहले अपन इससे ले रहे हैं, रिक्वेस्ट पैरम से। किससे ले रहे हैं? रिक्वेस्ट पैरम। तो अपना पहला रिक्वेस्ट पैरम क्या रहेगा? रिक्वेस्ट पैरम क्या नाम है? स्ट्रिंग। और किस नाम से? एम्प्लॉय नेम। और दूसरा क्या नाम से? डबल, ठीक है, डबल यू, ठीक है। क्या करूँगा फिर? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। एम्प्लॉय E1 इज न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग पैकेज में, हो गया हो गया। अब E1 के ओके, अपने गेट सेटर नहीं आ रहा ना, क्या डाला बोले ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाले ना गेट सेटर डाले। सोर्स में गया सेटर्स को, ओके। मेरे को इसके लिए सेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लोग के लिए। चलो ठीक है, कर लेते फिलहाल। ये वहाँ तो एम्प्लॉय मतलब वहाँ से आने वाला ना, चलो ले लेते फिर। और फिर जनरेट क्या? constructor using fields. I will not pass the employee number in the constructor, right? Whenever I create, इसको मैंने इससे निकाल दिया। And I have told you whenever you make a parameterized constructor, always make an empty default constructor. कोई शक? और टू स्ट्रिंग भी ले लो अगर ले रहा है तो। सोर्स में गए, अभी सब जो है ना अपन कर रहे हैं ना मैन्युअली, इसके लिए भी एनोटेशन, इसके लिए भी क्या है? इसके लिए भी एनोटेशन है। लॉम्बॉक करके एक लाइब्रेरी है, उसमें आप कर दोगे ऐड डेटा। क्या कर दोगे? सिर्फ क्लास के नाम को क्या कर देंगे? ऐड डेटा। बाय डिफॉल्ट सारे गेटर, बाय डिफॉल्ट सारे सेटर, बाय डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट ऑल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। अपने को ये कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ ये कोड का पूरा इक्विवेलेंट बन जाएगा। सिर्फ क्या क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट? ऐड डेटा एट द रेट डेटा क्लास के नाम के ऊपर लिख देना है। क्या कर देने का? क्लास के नाम के ऊपर क्या लिख देने का? एट द रेट डेटा। समझ आ रहा? ओके, तो यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? अभी कंट्रोलर में गए अपन, तो अब ये E1 को क्या कर देंगे? सेट कर देंगे ना। सेट ई नेम क्या जो ऊपर से आया है, किसमें है? ई नेम, यस और नो। और E1 से डॉट सेट सैल क्या जो ऊपर से आया है, सैल, यस। अब ये किसको पास कर देंगे? अपना काम हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसको पास कर देंगे सर्विस को। सर्विस को यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो सर्विस बनाए क्या अपन ने? सर्विस बनाएंगे ना, न्यू क्लास, क्या नाम से? EMP सर्विस, फिनिश, बन गई सर्विस क्लास। तो क्या करेंगे इसको? एट द रेट सर्विस, ठीक है। फिलहाल इतना कर लो। तो अभी कंट्रोलर में गए, और यहाँ पर क्या लग रहा है अपने को? कंट्रोलर क्लास के अंदर क्या? EMP सर्विस का ऑब्जेक्ट क्या नाम से? EMP सर्विस, राइट। और इसको मैं क्या कर दूंगा? एट द रेट ऑटो वायर्ड। तो ये आप लोग को ऑब्जेक्ट बन गया, ऑटो वायर्ड मिल गया मेरे को। तो क्या करूँगा मैं? EMP सर्विस से क्या फंक्शन कॉल करूँगा? ऐड EMP। क्या फंक्शन कॉल करूँगा मैं? और क्या पास कर दूंगा उसको मैं? ये वाला। अभी IDMP फंक्शन है क्या? IDMP फंक्शन है क्या उसमें? सर्विस में नहीं है ना, तो वो बोलेगा क्रिएट कर दो। क्या बोलेगा? क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट कर दिया?
ठीक है, अब ये किसको भेजेगा, इसको ऑब्जेक्ट को रिपोजिटरी को। तो यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी आगे बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू इंटरफेस बनाना क्या बनाना पड़ेगा अपने को, एम्प्लॉय रिपोजिटरी बना दिया। ओके, ये एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी, उसको एक्सटेंड करेगा कि वो सारी फीचर्स किसके अंदर है, अपन तो ये बना रहे हैं, तो अपनी अपनी रिपोजिटरी है, अपने रिपोजिटरी थोड़ी इनपुट फंक्शन है, फाइंड सेव डिलीट वो सब किसमें है, तो वो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा जेपी और रिपोजिटरी को एक्सटेंड। तो जेपी और रिपोजिटरी दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट है कौन सा टेबल को, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो, तो किसका पास कर रहे हो ऑब्जेक्ट आप, एम्प्लॉय क्लास का, ये बता रहा है कि पहला आपका ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का आएगा, और दूसरा उस क्लास की प्राइमरी की कौन सी टाइप की है। ठीक है, एम्प्लॉय इनहेरिट ये टाइप की है। ओके, क्लास पास करना था, ऑब्जेक्ट पास करना था। ठीक है, एम्प्लॉय को आपने इनहेरिट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। ओके, आ रहा समझ में। अब इसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक, ठीक है, तो इसका फंक्शन है सेव नाम का, क्या 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 फंक्शन है इसका, सेव। तो रिपोजिटरी डायरेक्टली इसको कॉल कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ पर गए सर्विस में, आ गया सर्विस अपना, सर्विस, तो सर्विस क्या करेगा, यहाँ पर किसका चला, अपने को क्या लगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का लग गया ना, रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने क्या, emp repo, क्या कर दिया उसको, ऐड ऑटो वायर, क्या करें, emp repo का एक फंक्शन कॉल किए, क्या नाम से, डॉट, क्या नाम दिख रहा है क्या, सेव, क्या पास कर दिया उसको, P1, रिकॉर्ड सेव हो गया, रिकॉर्ड सेव हो गया, समझ में आ रहा है। और जब रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो ये कर देगा रिटर्न बूलियन, क्या कर देगा रिटर्न, ये क्या कर देगा, रिकॉर्ड बूलियन, या फिर ये ऑब्जेक्ट ही कर देगा रिटर्न, क्या कर देगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, जो ये रिटर्न करता है ये उस ऑब्जेक्ट, इसने क्या रिटर्न किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, वो किसके पास आएगा, सर ये कौन है, सर्विस है, सर्विस किसको रिटर्न करेगी, कंट्रोलर को। तो यहाँ पर जब कॉल हुआ तो क्या रिटर्न हुआ, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, अपन ये रिटर्न कर देंगे अपने फ्रंट एंड वाले। तो अपन क्या रिटर्न कर रहे हैं अभी, अपन क्या रिटर्न कर रहे हैं अभी, ऑब्जेक्ट कर रहा है रिटर्न एम्प्लॉय क्लास का, टाइप चेंज कर देंगे, हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहे, हम एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा। अब जब अपन इसको हिट करेंगे तो अपने रिपोजिटरी के क्लास में कुछ नहीं लिखा है, अगर अपने को कस्टमाइज क्वेरीज लिखनी है तो सेव तो ऑलरेडी है ना उसके पास। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, रन करता हूँ इसको, स्टॉप कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चालू हो गया। और मैं जाता हूँ मेरे पोस्टमैन में, स्विगी, स्विगी के बाद क्या था, पोस्ट करना था, पोस्ट है ना, तो अपना कंट्रोलर में क्या था, NWCC था ना, तो क्या करेंगे, पोर्ट क्या लिया अपन ने, पोर्ट अपन ने क्या लिया, 8087 ही लिए हुए। क्या करेंगे इधर, स्विगी की जगह क्या करेंगे, NWCC, उसके बाद क्या है अपना, ये रिसोर्स का नाम क्या है, ऐड EMP, क्या नाम है, ऐड EMP, और फिर मैं क्वेश्चन मार्क ये अपना, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट पैरामीटर भेज रहा हूँ, पहला क्या है, क्या नाम दिया अपन ने उसको, हाँ, ई नेम, तो ई नेम इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ एलिस, और एंड क्या नाम दिए दूसरा, हाँ, सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू क्या दे रहा हूँ मैं, 800। हो गया, मेरा सर्वर अप है, तो क्या अपन क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सेंड किया तो मुझे उसने वो रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया जो मैंने पोस्ट किया।
ठीक है, और मैं डेटाबेस पे गया और मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे को रिकॉर्ड मिल जाता। कैसे रखिए। नाउ व्हाट इफ यू हैव 10 attributes to a class, concatenating them in the URL would become very tedious. What we can do is we can prepare if it is a post request, we can prepare a body like this and pass that as an argument. Okay, so what is the first name? तो यहाँ पर वो क्लास के नाम चाहिए पक्का। क्लास में कॉलम का नाम क्या है? जुबियान। और क्या है? तो ऐसा जैसे बताया तुम लोगों को मैंने, नेम था ना उसमें। हाँ एम्प्लॉय नेम। एट्रीब्यूट नाम क्या था? तो कॉलम का नाम था। और क्योंकि इसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं तो कॉमा निकाल देने का। तो अब जब हम ये बॉडी भेज सकते हैं पूरी, एम्प्लॉय ई नेम और सैल, तो इसका नाम मैच होना चाहिए। इसका नाम मैच होना चाहिए तुम्हारे मॉडल से। क्या है? ई नेम और सैल, और वो जाएंगे सब डबल कोट्स में। किसमें जाएंगे सब? अब ये बॉडी, इसको रीड करना है। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं देने का, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं देने का, ये बॉडी को रीड करना है आपको। उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट पेलोड, तो उसके लिए लगेगा रिक्वेस्ट बॉडी। क्या लगेगा उसके लिए? कंट्रोलर में क्या लगेगा? ठीक है, ये रिक्वेस्ट। ओके, मैं एक और थोड़ा डाटा डिफरेंट फंक्शन दैट विल नॉट कंफ्यूज्ड, दोनों फेवर मिले अपने को। ठीक है, तो मैं करता हूँ फंक्शन ऐड एम्प्लॉय बाय। ठीक है, तो पब्लिक रिटर्न करेगा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, और ऐड एम्प्लॉय बाय रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर वो @request बॉडी ही ले लेगा। क्या ले लेगा? @request बॉडी। और ये जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? हाँ, कौन सी क्लास का? तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट बॉडी में हम बोल देंगे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है EMP। ओके, अब डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट भी पास कर देंगे। तो ये सेटर वेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कर रहे थे अपन? ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सेटर कॉल, अब यहाँ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ गया ना, डायरेक्टली ये लगेगा। क्या करो फिर? वही फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये CR क्या आएगा? नाम दिया अपन ने, डायरेक्टली वही पास कर, बस वो वही सर्विस फंक्शन यूज कर लो। उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, E1 दो या EMP दो, सेम सिंटैक्स। अब इसको 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 से कॉल करेंगे अपन। तो इसको एक दे दो, रिसोर्स दे दो। क्या दे दो उसको? एक रिसोर्स दे दो। अगर ये कॉल करना है तो ऐड EMP बाय रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, अब ये पास करने का, ये सेव हो गया, चेंजेस हो गए। स्टॉप करो, वापस प्ले करो। अब क्या करने का? ये ऐड एम्प्लॉय नहीं देने का। क्या देने का? ऐड एम्प्लॉय बाय, और रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पर आ गया, और एम्प्लॉय नंबर ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये सुनो, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। डायरेक्टली मैं भेजता हूँ, ये मेरा सेंड है। डायरेक्टली रिटर्न द ऑब्जेक्ट विच हैज क्रिएटेड। दूसरे इंसर्ट क्या रिटर्न करेगा? तो व्हाट डिड रिटर्न नाउ? 2 रुपया 900 आया। डेटा ऐसे ले लिया। पहले के चेक करो, एम्प्लॉय पे क्लिक करो,